I left oil for a week and this is what happened. Modi ji said oil kam use karo, so I was like, okay sir. No, but I reduced my weight from 70 kgs to 50 kgs, and when I checked my weight recently, it was 53 kgs. So I'm like 3 किलो कैसे बढ़ गया. So मैंने अपना लाइफस्टाइल नोटिस किया एंड मैं ऑयल बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी, शुगर बहुत ज़्यादा खाने लग गई थी, घर में रोज़ पराठे बन रहे हैं, सब्जियों में भर भर के तेल डल रहा है. So I'm like this is not okay. I have to take a pause and see if I feel any changes in my body. And I could clearly feel that it is not a healthy weight gain. It was not my muscle weight that is increasing. I could clearly feel कि मेरे body में fat वापस से बढ़ रहा है. So for a week I left oil, ghee, sugar, मैदा, fried food, everything. Completely सात्विक भोजन. So it was quite a fun 1 week and मैंने अपनी craving से कैसे लड़ के ये 1 हफ्ता निकाला है. You will see it yourself. मैं प्रताड़ित लग रही हूँ लेकिन अच्छा बना है. अच्छा ट्राई करके देखिएगा. नहीं. मेरे ब्लॉगर्स को अच्छा बना है कि नहीं बना. अभी खाओ के अच्छा बोल रहा था आई स्वेयर. Again guys, without oil, another recipe. Today I did not put lettuce or anything else, only cucumber, but you can put all the salads and make this dahi wala dressing.
The dahi dressing has only few ingredients: garlic, oregano, chili flakes, salt, little bit of sugar. That's it. This must be a very unusual combination for you guys, but idli with this tomato coriander chutney is the best. I had my lunch by 12 and felt hungry again by 3:30, so I ordered this from Zepto. I had my lunch by 12 o'clock and I felt super hungry by 3:30, which never happens when I eat the food which has oil in it. So I'm pretty surprised, and it makes me think that how heavy our food becomes when it has oil in it. It's 7:30 right now and I am again hungry, which never happens. Never happens. Now I don't know what to eat, literally. But it's my rule, if I'm hungry, I am going to eat. So let me figure out what to eat. मेरे पास ये सूप रखा है guys, so I think this should do the job. It's night time guys, so I am trying not to eat too much. सो गाइस, जिस तरीके से आपने देखा बेल का जूस मैंने पी लिया रोज़ की तरह, एंड आई बॉट दिस चीज़ चटनी सैंडविच विच डजंट हैव एनी ऑयल. Although it has maida, I'm not in support with, but still sometimes it's okay. And this is the zero oil chivda. I don't know what is in this. दिख रहा है? Yeah, so I don't know what is in this, but the shopkeeper said it has no oil. It is puffed. So yes. इस बात को मैं कंफर्म करती हूँ कि इसके अंदर कोई ऑयल नहीं है. इट्स लिटरली पफ्ड. ओके, सो दिस हैज़ मुरमुरे, जवार, पीनट्स एंड सम अदर नेचुरल थिंग्स दैट दे हैव पफ्ड. गाइस, मैंने क्लियरली कुछ लोगों को इंस्पायर किया है ऑयल लेस खाना खाने के लिए. दिस इज़ dosa but with no oil. This is chutney, little bit of oil tadka that my very beautiful colleague got. Inspiring the world, guys. Guys, I want to share a progress with you all. Hold on. It was hard for me to do this butterfly pose, okay, but it got easier with time. Then I tried touching my head on my toes like this. It was very tough. I was not able to go like till here also, but look at me, how far I can go today. Look at me. I touched it. I touched my nose on my feet. गाइस, शूट के टाइम पे हमें तपती धूप में यहाँ वहाँ चलना होता है, वो भी हील्स पहन के. यहाँ वहाँ गिरना होता है. बहुत सारे अजीबोगरीब थीम्स होते हैं. सो आउटडोर में व्हेनेवर वी आर शूटिंग, इट गेट्स वेरी टायरिंग एंड एग्जॉस्टिंग. Although the beautiful part is you get so many compliments from strangers on the road. Ya sin ritmo bailábamos los dos. Daba lo mismo saber quién eras vos, quién era yo. Y murmuraste. Finally, the shoot is over and now my hunt is on for something that doesn't have any oil. And look at the options that we have in the market. So I decided to buy some Maggi and some namkeen, and then I changed my mind completely. So I gave back the Maggi because अगर मुझे oil छोड़कर मैदा ही खाना है, so I would rather choose oil. So I decided to have idli chutney, and they gave me some sambar as well. When I tasted the sambar, I felt the oil they have used in the sambar is not very good. So I decided to leave the sambar and just had idli chutney. हम मेकअप उतारते हुए बात करेंगे. सो आज दिन भर शूट था. 6 बजे घर से बाहर निकल गई थी.
3 दिन से जब बिल्कुल भी ऑयल नहीं खाया, इतना हल्का फील हो रहा था बॉडी में। खाना खाने के बाद भी ऐसा फील होता था कि हवा में उड़ रही हूँ। खाना खाने के बाद जो एक भारीपन लगता है ना, मतलब 2-3 घंटे बाद भी जो हमें भारीपन फील होता रहता है कि अरे खाना खाया है तो खाना बिल्कुल यहाँ है, वैसा मुझे आज फील हुआ, क्योंकि इडली चटनी और थोड़ा सा सांभर भी खा लिया था मैंने। सो वन थिंग आई डेफिनेटली रियलाइज्ड दैट ऑयल भारी तो होता है। तो अगर आपको लंबे टाइम तक पेट भरना है और आपको लगता है कि खाना नहीं मिलने वाला है, तब आप भारी खाना खाइए, खूब ऑयल हो उसमें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इफ़ यू हैव अ सिटिंग जॉब, यू नो, देन heavy oil food is something we all should avoid. और एक चीज़ मुझे और रियलाइज़ हुई कि मार्केट में कितना डिफ़िकल्ट है ऐसा खाना ढूंढना जो बिना ऑयल का हो और हेल्दी भी हो। मुझे सिर्फ मैगी, डाइट चिवड़ा, बस यही सब मिल रहा था। कहीं टेस्ट लैक कर रहा था, कहीं हेल्थ लैक कर रही थी। मैगी में ऑयल नहीं होता, लेकिन अगर मैदा ही खाना है तो इससे बेटर तो मैं ऑयल ही खा लूँ। मैगी इज समथिंग आई डेफिनेटली डोंट रेकमेंड, नॉट बिकॉज आई हैव बीन हेल्दी ऑल माई लाइफ, बट बिकॉज आई यूज टू ईट मैगी 3 times a day. I was a Maggi addict. You won't believe this. But now I know the repercussions of it. So मैगी से मैं थोड़ा दूर ही रहती हूँ गाइस। अगर मेरी ये नौबत आ गई है कि मुझे मैगी ही खानी पड़ेगी, तो मैं कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऑयल वाला खाना खा लेंगे। इसीलिए मैंने फिर इडली और चटनी खाया और मेरा पेट इतना भर दिया उस चीज़ ने कि मुझे अभी तक भूख ही नहीं लग रही है। वन मोर थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड कि ऑयल के बिना खाना बनाना डिफ़िकल्ट तो है, थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट लैक करता है। वो क्रेजी टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन बुरा भी नहीं लगता है। सो डिफ़िकल्ट तो है मोदी जी, आपने बोल दिया है ऑयल यूज़ मत करो, बट Day 5 guys, it's 8 o'clock and I'm already in the office. So had my protein shake in the morning as usual, and I brought a lot of salad with me, so I'm gonna order bread and cheese and make a sandwich in office itself. Guys, I'm so sorry, मैं आपको बताना भूल गई, मैं एक सैंडविच खा चुकी हूँ, ये दूसरा पड़ा है। एकदम नो ऑयल हरा भरा लंच। उसको बताएं टेस्ट में कैसा है शुरू, एकदम बेस्ट टेस्ट। मुझे किस तरीके से टेम्पटेशन दी जा रही है, देखो ठीक है। ये लड़की लाई है पनीर टिक्का लाई है ये टिफिन में, और मुझे कह रही है मैं किसी को नहीं बोलूंगी, तुम खा लो ना पनीर टिक्का। मंडे तो वैसे भी खाने वाले हैं, तो 2 दिन इट्स फाइन। नहीं, बिल्कुल भी फाइन नहीं है। मेरा डेडिकेशन है ये। वन पिंच नहीं, क्या बोलते हैं, 1 drop ऑफ ऑयल डाला है। नहीं, कल गाइस वैसे भी इडली सांभर में हो गया ना अपना, तो अभी कल हो गया तो आज वापस हम देते हैं। यही प्रॉब्लम, दिस लैक ऑफ डिसिप्लिन, दिस इज ओनली लैक ऑफ डिसिप्लिन। हो गया ना, कल मजबूरी थी, आज कोई मजबूरी आज नहीं मजबूरी है ना, पनीर नहीं। टिक्का आपको क्रेविंग हो रहा है, आपके मुंह पे दिख रहा है। आपके मुंह पे दिख रहा है आपको। देख, मैं तुझे बताती हूँ, मेरे मुंह पे सेम चीज दिखेगी तुझे मंडे को, प्लीज मंडे ले आ। मम्मी को बोलती हूँ, मम्मी अगर बनाएगी तो मैं लेके आऊंगी, डील। गाइस मैंने पढ़ा लिया है, देखो डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन गाइस। देखो मैं आप लोग के लिए कितना करूँ, सब्सक्राइब। दिस हैज़ टू बी द बेस्ट नो ऑयल रेसिपी, गुआकामोले पास्ता। बेसिकली आपको गुआकामोले बनाना है, जिसकी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे मिल जाएगी। गुआकामोले में जनरली गार्लिक नहीं डलता है, बट इसमें आप गार्लिक डाल देना एंड स्क्वीज अ लॉट ऑफ लेमन, बॉयल द पास्ता एंड मिक्स इट टुगेदर, दैट्स इट। इट वॉज अमेजिंग। क्रैक्ड इट गाइस, दिस इज़ चुकौनी, इट्स अ नेपाली डिश। इसमें तड़का लगता है, लेकिन मैंने इसको विदाउट तड़का बनाया है। इट इज़ स्टिल डिलिशियस। फाइनली क्रैक्ड अ रेसिपी दैट आई कैन एक्चुअली enjoy very much without the oil. Highly recommended. You should definitely try this.
विद इन 1 वीक मैं 53 केजीज़ से 51 केजी पे आ गई हूँ एंड आई ऑलरेडी नो कि वेट मशीन थोड़ा सा वेट ज़्यादा ही बता रहा है बिकॉज माई पीरियड्स आर नियर, सो वुमेन का वेट पीरियड्स के अराउंड थोड़ा सा ज़्यादा ही दिखाता है एंड आप ज़्यादा ब्लोटेड फील करते हो, बट स्टिल ये ऑयल छोड़ने के बाद इवन इफ माई पीरियड्स आर नियर आई डोंट फील ब्लोटेड बिकॉज वेन यू गो थ्रू योर वेट लॉस जर्नी और योर हेल्थ जर्नी यू वॉन्ट टू गेट बेटर हेल्थ वाइज. इट्स नॉट अबाउट हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू लुक बट इट्स मोर अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू फील. आई डिड नॉट नो दैट कि ऑयल छोड़ने के बाद मुझे इतना ज़्यादा लाइट फील होगा अपनी बॉडी में. ये एक हफ्ते तक जब मैंने सात्विक फूड पूरा फॉलो किया, ओ माई गॉड आई कैन नॉट टेल यू हाउ एनर्जेटिक आई फील. मैंने 2-3 दिन तक जब लगातार ऑयल यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया, मुझे उन्हीं 2-3 दिन में बहुत लाइट फील होने लग गया था. हाउ कैन आई फील सो लाइट ओनली बाय रिड्यूसिंग द ऑयल एंड हाउ कैन आई फील सो एनर्जेटिक. सो मैंने ऑयल के बारे में रिसर्च करना शुरू करा एंड देन मुझे पता चला कि कौन से ऑयल अच्छे होते हैं हमारी बॉडी के लिए, कौन से यूज़ नहीं करने चाहिए. रिफाइंड ऑयल जनरली एवरी वन इज सेइंग not to use. Cold pressed oil are really good oils for your body to use. तो मैंने कच्ची घानी सरसों का तेल which is cold pressed, I got that 1 liter and I got olive oil because उसके अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है, हेल्दी फैट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. एंड ऑलिव ऑयल मार्केट में ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, सो इफ़ यू वांट टू यूज़ ऑलिव ऑयल मेक श्योर कि वो ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर की बॉटल में रखा हो, क्योंकि अगर वो सन के साथ में कांटेक्ट में आता है और अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइट चली जाती है सो इट चेंजेस इट्स बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ वॉट एवर. वो ऑयल थोड़ा सा आपको एक्सपेंसिव मिलेगा बट इट्स टोटली वर्थ इट. ऑलिव ऑयल को आप लाइट सॉटे करने के लिए या सैलड्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं. दैट इज़ द बेस्ट वे टू यूज़ ऑलिव ऑयल. उसमें पूरियाँ मत तलने लग जाना बिकॉज दैट्स नॉट ऑलिव ऑयल इज़ मेंट फॉर. इतनी सारी रिसर्च करने के बाद मुझे एक चीज़ ज़रूर समझ में आई कि आपको रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करना है. दैट्स इट. कोल्ड प्रेस्ड ऑयल आप कोई सा भी यूज़ कर लीजिए, दैट इज़ गुड फॉर योर बॉडी. सो आफ्टर 1 वीक नाउ आई गॉट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल और मैं सब्ज़ी वगैरह देसी खाना बनाने के लिए सरसों का तेल कच्ची घानी का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज़ करती हूँ. एंड आई स्वेयर टू गॉड मुझे बिल्कुल भी बॉडी में ऐसा हैवीपन नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. आई एम लाइक दैट्स इट. मुझे रिफाइंड ऑयल छोड़ना था. वाओ. I hope you enjoyed this video and you got some important information out of it. And if you're enjoying my channel, please like, share, subscribe.